Students, today we will discuss about SEBI guidelines on private placements. Students, we will discuss this topic in three important parts. That is, in the first part, we will discuss regarding what is the meaning of private placement and what are the different methods through which a company may raise fresh capital from the market. In the second part, we will discuss regarding what are the important SEBI guidelines regarding private placements. And in the last part or in the third part, we will discuss regarding what are the important procedures that a company must adopt for making private placements. मतलब एक कंपनी को कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स को फुलफिल करना होगा, कौन कौन से ऐसे कार्यों को करना होगा अगर उसे प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो. So students, we will discuss about private placements in these three important parts. Now let us start this important topic. First part, what is the meaning and what are the different methods of making issues? Students, all of you know that there are three important methods through which a company may raise fresh capital from the market. Those three important methods are: number one, public issues. It is a method through which a company directly invite the general public for the purpose of subscription of its issues. In this, the company generally invite the general public by the help of prospectus. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कंपनी जनरल पब्लिक को डायरेक्ट इनवाइट करती है विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस. उनको एक इनविटेशन देती है कि आइए और हमारे शेयर्स को आप सब्सक्राइब करिए. दिस मेथड इज पब्लिक इशू. द सेकेंड इंपॉर्टेंट मेथड इज राइट्स इशूज. अंडर दिस मेथड द कंपनी डायरेक्टली इनवाइट इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज एट अट्रैक्टिव प्राइसेस. दूसरा मेथड है जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अट्रैक्टिव प्राइसेस पे अपने ही शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट करती है. दैट मेथड इज रिगार्डेड एज राइट्स इशूज. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड इज प्राइवेट प्लेसमेंट्स. अंडर दिस मेथड द कंपनी इनवाइट अ लिस्ट ऑफ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स टू परचेस इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. Basically, the private placements are those offers which are made by the company directly to a list of sophisticated investors. Students, in the matters of private placement, the number of investors should not be more than 50. That means the number of investors should be either 50 or less than 50. यहां बच्चों एक बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स शुड बी 50 और लेस देन 50. ऐसा कंपनीज एक्ट की 1956 की प्रोविजंस में बिल्कुल नहीं दिया हुआ है. तो ये आखिर हमें पता कैसे चलता है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स या तो 50 होने चाहिए या 50 से कम होने चाहिए? दिस वाज बेसिकली डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में बताया गया है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स प्राइवेट प्लेसमेंट्स में 50 या उससे कम होने चाहिए. किस ऑर्डर में बताया गया है? अंडर द केस ऑफ सेबी वर्सेस सहारा. यहां एक आप लोग इसे ध्यान से सुनिए कि इस मैटर में हुआ क्या था. एक्चुअली टू कंपनीज ऑफ सहारा, दैट इज SIRECL, दैट मीन्स सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड SHICL, दैट इज सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. द टू कंपनीज ऑफ सहारा, they raised more than 19,400 crore rupees from the market from more than 2 crore investors by offering OFCDs. OFCD एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट था या सिक्योरिटी था जिसका बेसिकली इन लोगों ने नाम दिया था फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स. Optionally fully convertible debentures, OFCD, optionally fully convertible debentures. Now, SEBI just argued this particular investment. SEBI ने इसे काउंटर किया और SEBI ने कहा कि OFCD नाम की कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती ही नहीं है जिसे हम लोग ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कहा जाए. प्लस
सेबी ने दूसरी आपत्ति ये दर्ज कराई कि बोथ दिस कंपनीज SIRECL एंड SHICL, both these companies, they are basically unlisted companies, and because they have raised money from more than 2 crore investors, that's why this is a case of public issue, and a case was filed by SEBI against Sahara in the Supreme Court. After the hearing, Supreme Court stated that since both the companies have raised more than 19,400 crores from more than 2 crore peoples, that's why this is a case of public issue. Supreme Court ने सीधा सीधा कहा कि since the number of investors is more than 50, the number of investors is 2 crore, which is more than 50, that's why this case should be regarded as a case of public issue. तो वहां से हमें पता चलता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्पीकिंग ऑर्डर थी कि क्योंकि 50 से नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं, इसलिए यह मामला पब्लिक इशू का है, ना कि प्राइवेट प्लेसमेंट का। तो वहां से हमें पता चलता है कि अगर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 50 या उससे कम होंगे तो मामला प्राइवेट प्लेसमेंट का कहा जा सकता है, अदरवाइज इट शुड बी ट्रीटेड एज अ केस ऑफ पब्लिक इशू। So, in the matters of public issue, the number of investors should be either 50 or less than 50. Now students, in the second part, we will discuss regarding the important SEBI guidelines related to private placements. Now, the important guidelines are as follows. Number 1, the companies are allowed to make a maximum of 4 offers regarding private placement in one financial year. यानी प्राइवेट प्लेसमेंट अगर कोई कंपनी करना चाहती है तो एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी कंपनी मैक्सिमम 4 बार ही कर सकती है। यानी अगर कोई कंपनी डिसाइड करती ही है कि हमें प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो वो एक साल में मैक्सिमम 4 टाइम्स ही कर सकती है, 4 से ज्यादा बार वो नहीं कर सकती है। गाइडलाइन नंबर 2, द ऑफर्स फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट्स कैन बी मेड to a maximum of 50 investors at a single time. यानी 4 बार तो कंपनी कर सकती है, बट एक बार अगर वह इशू करती है तो एक बार में मैक्सिमम 50 इन्वेस्टर्स को ही वह इनवाइट कर सकती है। यानी प्राइवेट प्लेसमेंट के एक ऑफर में वह मैक्सिमम 50 लोगों को ही इनवाइट करेगी, 50 से ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 50 से ज्यादा जैसे ही होंगे वह मामला पब्लिक इशू का मान लिया जाएगा। इसलिए यहां क्लियर कट गाइडलाइन कहती है कि 50 या उससे कम के ही इन्वेस्टर्स को आप ऑफर करेंगे, कंपनी ऑफर करेगी एक बार में। गाइडलाइन नंबर 3, द कंपनी कैन इशू टू अ मैक्सिमम ऑफ 200 इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग द ऑफर्स रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट इन वन फाइनेंशियल ईयर। बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंपनी 200 इन्वेस्टर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट्स के द्वारा ऑफर दे सकती है। क्यों? क्योंकि गाइडलाइन नंबर 1 में सीधा सीधा कहा गया था कि एक कंपनी 4 बार ऑफर कर सकती है और एक बार में 50 लोगों को ऑफर कर सकती है। तो 4 बार करेगी और चारों बार अगर अलग अलग इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करती है तो 50 × 4 200। तो यहां सीधा सीधा कहा गया है कि 200 इन्वेस्टर्स को इन्वाइट कर सकती है। यानी चारों बार वो चारों अलग अलग या 50-50 अलग अलग इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर सकती है। गाइडलाइन नंबर 4, इफ सच ऑफर्स आर मेड टू मोर देन 50 इन्वेस्टर्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, इट शैल बी ट्रीटेड एज पब्लिक इशू। गाइडलाइन क्लियर कट कहती है कि अगर एक सिंगल इशू में 50 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करती है कंपनी, देन दैट मैटर shall be regarded as a matter of public issue. Guideline number 5, Section 42 and Section 62 of Companies Act 2013 deals with the matters of private placement. Companies Act 1956 में तो कहीं पे भी प्राइवेट प्लेसमेंट में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग नहीं कहा गया है, बट कंपनीज एक्ट 2013 जो आया है उसके सेक्शन 42 और सेक्शन 62 ये पूरी तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट से डील करते हैं और वहां इंपॉर्टेंट चीजों की जानकारी देती है। नेक्स्ट गाइडलाइन, दैट इज गाइडलाइन नंबर 6, नो फ्रेश ऑफर्स फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट्स कैन बी मेड
until and unless the old offer is completed or withdrawn। यहां गाइडलाइन क्लियर कट कहती है कि 4 बार तो भले ही आप कर सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर को किसी कंपनी को करना है। और एक बार अगर प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर किसी कंपनी ने इनिशिएट कर दिया, तो जब तक वह ऑफर या तो कंप्लीट नहीं हो जाता या कंपनी उसे विड्रॉ नहीं कर देती, तब तक वो दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर नहीं कर सकती है। मतलब एक बार में आप एक ही ऑफर करेंगे। एक साल में आप 4 ऑफर कर सकते हो, कोई कंपनी 4 ऑफर कर सकती है, पर एक बार में एक ही ऑफर करना है और दूसरे ऑफर को तब तक शुरुआत नहीं करना है जब तक कि पहला ऑफर या तो उसे आप कंप्लीट न कर ले या उसे कंपनी विड्रॉ न कर ले। जब कंपनी पहले ऑफर को कंप्लीट कर ले या विड्रॉ कर ले, तो ही वो दूसरे ऑफर को स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट गाइडलाइन नंबर 7, फॉर एवरी सिंगल इन्वेस्टर द वैल्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर शुड नॉट बी लेस देन ₹20,000। यानी गाइडलाइन क्लियर कहती है कि एक बार में आप 50 तक के लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो, पर हर इन्वेस्टर मिनिमम 20,000 रुपए कम से कम कंपनी में लगाएगा। अगर इन्वेस्टर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिसाइड कर दिया गया है, जो है 20,000 रुपए। यानी कोई भी इन्वेस्टर 20,000 से कम की इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इस माध्यम से कर रहे हैं, तो कम से कम 20,000 रुपए तो इन्वेस्ट करना ही होगा। नाउ गाइडलाइन नंबर 8, द एंटायर अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मस्ट बी मेड विद द हेल्प ऑफ चेक, ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर और अदर चैनल्स यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, बट पेमेंट इन कैश इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बच्चों, गाइडलाइन साफ साफ कहती है कि जो व्यक्ति प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा कंपनी में पैसा लगा रहा है, वह कैश के द्वारा बिल्कुल नहीं लगाएगा या कंपनी कैश के रूप में पेमेंट बिल्कुल नहीं लेगी। तो पेमेंट का माध्यम क्या होगा? चेक होगा, डीडी होगा या और कोई भी माध्यम जो एक कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है। तो हर माध्यम से कंपनी पैसा ले सकती है, लेकिन कैश को छोड़ के, कैश से पैसा बिल्कुल नहीं लेना है। नेक्स्ट गाइडलाइन, द कंपनी मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर शुड नॉट यूज एनी काइंड ऑफ मीडिया फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक। यानी गाइडलाइन सीधी सीधी कहती है कि कंपनी को एडवर्टीजमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के रिगार्डिंग नहीं करना है। उसे एडवर्टीजमेंट करके पब्लिक को अपील करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जो भी इन्वेस्टर्स हैं, 50 या उससे कम जितने भी हैं, सबको प्राइवेटली अपील करना है, ना कि एडवर्टीजमेंट के द्वारा। कंपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी, उन्हें पर्सनल लेवल से कांटेक्ट करके और इन्वेस्टमेंट के लिए राजी करना है। यानी जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे जिनकी संख्या 50 या उससे कम है, उन इन्वेस्टर्स को कंपनी प्राइवेट अपने पर्सनल लेवल पे अपील करेगी। एडवर्टीजमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। एडवर्टीजमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट्स। नाउ नेक्स्ट गाइडलाइन, द कंपनी मस्ट फाइल द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स सर्कुलेशन। यानी प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे ही कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि अब हमें प्राइवेट प्लेसमेंट करना है और ऑफर लेटर को सर्कुलेट कर लिया प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को, जिन लोगों को भी इनवाइट कर रही है, जाहिर सी बात है उनकी संख्या 50 या उससे कम होगी। जैसे ही इन लोगों को कंपनी ने फाइनलाइज कर दिया प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को और उन्हें ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, उस दिन से, ऑफर डॉक्यूमेंट देने के दिन से 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करना होगा। जिस दिन आपने इन्वेस्टर्स से अपील कर लिया या उन्हें सर्कुलेट किया, उस दिन से 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपको फाइल करना अनिवार्य है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इज द एंटायर अमाउंट अलॉटमेंट प्रोसीजर
must be completed by the company within a period of 60 days from the date of receiving the application money। मतलब जब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आना शुरुआत हो गया और लास्ट एप्लीकेशन मनी आ गया, तो लास्ट एप्लीकेशन मनी मिलने से 60 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को पूरी की पूरी अलॉटमेंट प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा। दैट मीन्स द डे व्हेन द लास्ट एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, from that particular date within a period of 60 days the company must complete the entire allotment procedure। जिस दिन आपके पास लास्ट एप्लीकेशन मनी आ रहा है कंपनी के पास, उसके 60 दिनों के अंदर अंदर उसे पूरी की पूरी अलॉटमेंट प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन मेड बाय द सेबी और सेबी। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, that is procedures of allotment or procedure to be adopted by the company for making private placement। यानी कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो किसी भी कंपनी को करने होते हैं अगर उसे प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा फ्रेश कैपिटल को मार्केट से जनरेट करना है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं? बेसिकली स्टूडेंट्स, इट इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को किसी भी कंपनी को पूरा करना होता है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। किसी भी कंपनी को स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, उन 50 लोगों को खोजना होता है, 50 या उससे कम, उन लोगों को खोजना होता है जो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि यहां ये ध्यान रखिएगा, हर इन्वेस्टर को कम से कम 20,000 रुपया जमा करना है। 20,000 या उससे ज्यादा पैसा जमा करना होता है या उतने के शेयर्स खरीदने होते हैं। तो कंपनी के लिए स्टेप नंबर 1 में टू आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एंड द नंबर ऑफ इन्वेस्टर शुड बी 50 और लेस देन 50। इन द स्टेप नंबर 2, द कंपनी हैज टू प्रिपेयर द कंप्लीट लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। स्टेप नंबर 1 में जो भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हाँ बोलते हैं, स्टेप नंबर 2 में कंपनी क्या करती है, उनकी एक लिस्टिंग तैयार कर लेती है। जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे, जाहिर सी बात है कि उनकी संख्या 50 या उससे कम होगी, तो उतने लोगों की एक कंपनी लिस्ट तैयार कर लेती है, फ्रॉम लिस्ट 1 to 50 और एनी नंबर बिटवीन 1 to 50। वैसे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स की लिस्ट कंपनी तैयार कर लेती है। इन द स्टेप नंबर 3, the company prepare or finalize the offer document or offer letter। इन लोगों को जो ऑफर लेटर देना है उसे कंपनी प्रॉपरली लीगली एज पर दी प्रोविजन स्टेटेड अंडर सेबी एक्ट, उसके तहत ऑफर लेटर को तैयार कर लेती है। बेसिकली यहाँ कंपनी किसका सहायता लेती है? मर्चेंट बैंकर्स का सहायता लेती है। विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट बैंकर ऑफर लेटर इज ड्राफ्टेड बाय द कंपनी एंड all the material facts are disclosed under the offer letter। यहाँ पे सारे material fact जैसे कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के प्रोमोटर्स, कितनी कंपनी शेयर्स को इशू करने वाली है, क्या टारगेट है, कितने लोगों की लिस्ट तैयार है, या कितने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स या कितने इन्वेस्टर्स इस प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, इस सारी चीजों को ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है और इसे फाइनलाइज किया जाता है। स्टेप नंबर 4, इन स्टेप नंबर 4 द ऑफर लेटर इज बेसिकली अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन अ स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी क्या करती है? एक स्पेशल रिजोल्यूशन कॉल करती है, एक मीटिंग कॉल करती है और स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा कंपनी के शेयर होल्डर्स इस ऑफर डॉक्यूमेंट को पास करते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन का यहां मतलब कि ये जो पास कराया जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट को प्लस लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, ये दोनों चीजों को पास कराया जाता है स्टेप नंबर 4 में। ये दोनों 2/3 मेजोरिटी से पास कराया जाता है। दैट मीन्स इन द स्टेप नंबर 4 द शेयर होल्डर्स हैज टू पास द ऑफर लेटर प्लस द लिस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एट लीस्ट बाय 2/3 मेजोरिटी इन द स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड in the last step or the 5th step, the offer letter is dispatched to the prospective investors and
एप्लीकेशन मनी और एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। लास्ट स्टेप में कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस जो ऑफर लेटर पास किया गया था स्टेप नंबर 4 में, वह दोनों डिस्पैच कर देती है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के पास और एप्लीकेशन मनी को कॉल कर लेती है और अपने पास रिसीव करने लेती है। तो बच्चों यहां दोबारा से एक बार स्टेप पे समझ लीजिए। सबसे पहले कंपनी आइडेंटिफाई करती है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को। सेकंड पे उनकी एक लिस्ट को तैयार करती है कि कितने लोग इतनी अमाउंट को हमारे पास जमा करना या हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3 में कंपनी ऑफर लेटर को फाइनलाइज करती है। स्टेप नंबर 4 में उसी ऑफर लेटर और लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन से पास कराती है जिसमें शेयर होल्डर्स की वोटिंग होती है। और 5th स्टेप में कंपनी डिस्पैच करती है ऑफर लेटर को प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के पास प्लस एप्लीकेशन फॉर्म को भी डिस्पैच करती है और एप्लीकेशन मनी को फिर कॉल अपॉन कर लेती है। और गाइडलाइन तो कहती है कि जिस दिन एप्लीकेशन मनी लास्ट रिसीव होता है उसके 60 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को पूरा का पूरा अलॉटमेंट प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द सेबी गाइडलाइंस रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट्स। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत